अभी जब लॉन्गेस्ट सीक्वेंस निकाली है कौन से निकली? 2 से निकली है 2 से। अब वो तो किसी से भी निकल सकती है ना? हाँ, क्योंकि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस दरमियान में भी हो सकती है, वो शुरू में भी हो सकती है, वो यहाँ से वो होती हुई पूरी स्टैंड भी हो सकती है ना? तो हमें पता नहीं कि वो कहाँ से लॉन्गेस्ट सीक्वेंस शुरू हो रही है। ये समझ में आई बात? ठीक है? Let me do a small change, and then things will be obvious. And that change is the following. What I will do is, I have made this one vertex, calling it as a source vertex, and I'm calling this as a destination vertex. Okay? What I do is, from this source vertex, I put edge to every vertex. सबके ऊपर मैं यहाँ पे ऐसा होता हूँ, ठीक है? एक काम मैं और करता हूँ, वो ये सारों से मैं डेस्टिनेशन पे भी एक एज होता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सबसे, ठीक है? अच्छा, सवाल से इन पे एजेस पे वेट क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो एज है ना, ये बताती है कि एक लेंथ का सीक्वेंस है। सवाल ये है कि इससे एज पे क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आप देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल इस पे 1 दे दें, 1 दे, और इन पे वो तो 2 एक्स्ट्रा वेट्स हो जाएंगे। हाँ, अभी देखते हैं। यहाँ से अगर मैं एक बात सुनो, अगर मैं इस पास को लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 to 3, 3 to 6 to 7, इसकी लेंथ कितनी बनेगी? 1 2 3 और सीक्वेंस कितनी बड़ी है? 4। लेंथ 3 की आ रही है और सीक्वेंस 4 की है, एक्चुअली कम आ रही है ऐसे। एजेस हाँ, एजेस एक कम ही होती है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है? बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड for the distance value, the path length value. Okay? अब सवाल ये है कि मैं क्या करता हूँ? मैं एक छोटी सी चेंज करता हूँ, और वो ये सोर्सेस से जिन के ऊपर जा रही है ना, उन सब पे मैं 1 डाल देता हूँ, और जो सोर्सेस इनसे डेस्टिनेशन पे जा रही है उन सब पे मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, या I can do the other way around. It doesn't matter. ठीक है? And you know what I do now? I ask this question. Find the longest distance. So from S to destination D. And that distance value will be equal to the longest path. The longest path from S to D. Following which edges? Following these edges जो हमने ग्राफ में लगाए हैं. Okay? So this problem, the longest increasing problem, has become which problem? Graph. DAG में कौन सा problem जो हमने पहले किया था? The longest path problem. BFS नहीं, topological sort करेंगे topological order में हम चला देंगे। हमने पहला problem किया, आज आते ही हमने पहला problem किया, बोले ठीक है, ये बात सुनाई, ठीक है? So this become the exact same problem. And all you have to do is find the source, find the distance, the longest distance from source to destination. By the way, do you need topological ordering here? No. Why? They are already in order. You don't need to even do topological sorting. They are already in order. क्योंकि आपने इसी order में compute करना है। बात सुना? ठीक है? So everybody can see this. This is actually a graph problem. Okay? But we will not going to solve it through graph problem. But the thing I wanted to show you that there is a DAG inside. Okay? All right. So let me erase this. And I hate to erase this. सभी आगे करो, जल्द आगे करो, बड़ा आगे करो। एक स्लाइड।
So look at this. इसमें क्या चीज मिसिंग है ये बताएं? इस ग्राफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन. ओके, ठीक है. इस ग्राफ में सिवाय सोर्स और डेस्टिनेशन के बाकी सब कुछ हमने बना दिया. ठीक है. And now all I need is find the longest distance. Okay, find the longest path. All right. From where to where I don't know. Unless I put what? The source. I put a source vertex here and a destination vertex here. Everybody understand? Yes. Everybody understand? So here is the idea. Okay, let me wait for it. Everybody understand? This was a very beautiful, nice, simple transformation. और हमने 6 में कन्वर्ट कर दिया डैम में. ठीक? मैं आपको बात बताऊं. हमने कौन सा प्रॉब्लम किया था? फिबोनाची. फिर हमने कौन सा किया? कटलर. वो भी एग्जैक्टली डैम होते हैं. क्यों? जब हम फिबोनाची n कंप्यूट करने जाते हैं. Fibonacci n is dependent on non-Fibonacci n minus 1, Fibonacci n minus 2, which is going downwards, always moving forward. Okay? वो भी DAG प्रॉब्लम होता है. But DAG की उसमें जो computation है वो नीचे से दोबारा उतर आती है. Okay? Everybody understand? और हम जो उसको bottom up compute करते हैं तो हम उसकी direction accumulate करते हैं. ठीक है? Everybody understand? ठीक है? और इससे हमने जब कैटलॉग नंबर किया वो भी एग्जैक्टली यही है कि कैटलॉग n कंप्यूट करने के लिए हमें नीचे वाले कंप्यूट करने होते हैं और नीचे वाले कंप्यूट करने के लिए दोबारा नीचे जाते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ. वो भी एग्जैक्टली डैग प्रॉब्लम होता है. एक्चुअली बड़ी मजा आता हूँ आपके जितने भी रिकर्सिव प्रॉब्लम है, जितने भी रिकर्सिव प्रॉब्लम वो सारे के सारे डैग प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर पे ऊपर बैठा होता है, उसको नीचे वाला सोल्यूशन चाहिए होता है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और वो नीचे वाला पे डिपेंडेंट होता है और वैसे जो नीचे वाला मिलता है उसको कंप्यूट कर देता है. Everybody understand? So all these dynamic programming problems are actually in the background. They are DAG problems. Okay? Everybody understand? Okay? I will show you lots of examples in this lecture and in the next lecture. Okay? This is the last one. So far so good. So look at this algo. Very simple algo. We're going to look at its graph solution and then we're going to make it its code, a C++ code. Okay. Now look at this. वो क्या कर रहा है? भाई इसने जो सोल्यूशन दिया उसमें सोर्स डेस्टिनेशन नहीं डाला. ठीक है? तो वो ना आखिर में एक बार ट्रैवर्स मारता है. क्या ट्रैवर्स मारेगा? वो हर एक के ऊपर ना डिस्टेंस वैल्यू कंप्यूट करता है और फिर वो एक बार पूरा स्कैन मारता रहता है किसका मैक्सिमम वैल्यू आई है. ये समझ में आ गया? देखिए हमने सोर्स और डेस्टिनेशन डाल के हमने कह दिया जहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा, है ना? कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक मेरा लॉन्ग डिस्टेंस क्या बनता है. इसने सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों फोल्डर दोनों वर्टिसेस नहीं डाले तो ये क्या करेगा? रिवर्स करेगा. हाँ, रिवर्स करेगा. वो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालेगा. ठीक है? और क्या करेगा? 1 ऐड कर. और 1 ऐड करके वो वैल्यू निकालेगा. ठीक है? तो लुक एट दिस. क्या कहता है? कहता है फ्रॉम j is equal to 1 2 to n यानी हर वर्टेक्स पे जाओ और वो कहता है lj is equal to what? 1 plus जी मैक्स LIIJE. ये क्या चीज बताएं मुझे. What is IJ? वो एज शाबाश. All those edges which are coming to J. So for example अगर मैं देखूं तो मैं 9 के बारे में जब बात करूंगा तो मैं कौन सी एजेस की बात करूंगा? 5 to 9. मैं ये 6 से आ रही है एज, 3 से भी आ रही है एज, 8 से भी आ रही है एज, 2 से भी आ रही है एज, 5 से भी आ रही है. इन सारी एजेस को मैं ट्रीट करूंगा और मैं देखूंगा क्या? मैं कह रहा हूं कि भाई जो जहां से एज आ रही है उस पे जो वैल्यू लिखी हुई है और ये इसमें एक ऐड करो और देखो इसमें जो भी मैक्सिमम है वो मेरा आंसर है. अभी बढ़िया से. और आखिर में क्या करो? रिटर्न क्या करना है? रिटर्न कर दो जिसकी सबसे मैक्सिमम. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? है ना? समझ में आएगा? समझ में आएगा नहीं है ये बता देता. ठीक है? हाँ? 1 क्यों क्या? 1 क्यों ऐड कर रहे हैं आप बताएं. सोर्स के साथ सोर्स से सारे नहीं ये बात हाँ जब हमने सोर्स से वो सबको दिया था तो हमने 1 वेट दिया था हमको और जब सारे उनसे आउटगोइंग वो जो इनकम डेस्टिनेशन को थे हमको 0 दिया था क्योंकि हमें वो पूरा पार्ट चाहिए होता था. वो 1 माइनस वो नोट. बेटा देखना अगर एक ही एज आ रही है किसी के पास तो और उस पे क्या लिखा फिर उस पे क्या लिखा
हाँ इसमें 1 लिखा हुआ अकेला इंडिविजुअली हर एक के ऊपर शुरू में 1 लिखा हुआ इंडिविजुअली, क्योंकि हर एक क्योंकि आप यहाँ पे हर एक के ऊपर इन्फिनिटी सेव नहीं होगा, यहाँ पे हर एक के ऊपर इंडिविजुअली क्या सेव होगा 1 से। क्यों 1 से हो? नहीं, क्योंकि हर खुद जो वर्टेक्स है, हर खुद एक एरे का इंडेक्स अगर हम लें तो वो खुद एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस किस तरह की है, तो अब वो अकेला अगर देखें तो एक लेंथ की सीक्वेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली क्या करेंगे कि ना कि हम इस वर्टेक्स पे जाते हैं और इससे पीछे वाले जितने भी वर्टेक्स हैं सबको देखते हैं और हम देखते हैं कि किसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कौन सी आ रही है। मेरे पास जो एडिस मेरे पीछे से आ रही है उन सबको मैं ट्राई करता हूँ कि कौन कौन सी है जो कि लीगल है, और उन लीगल एडिस में देखता हूँ कि वहां पर जो नंबर्स पड़े हैं मैक्सेस, उनमें से उसमें क्या करेंगे, उसमें हम एक ऐड करेंगे, चेक करेंगे क्या ये वैल्यू उस पुराने वाले मैक्स से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो उसे रिप्लेस करना। ठीक, ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट इन C++ कोड। ठीक, यू विल सी इट इन अ व्हाइल। मैं दोबारा से वापस आता हूँ कि जब C++ कोड देखेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली सेम रहेगा कि मैंने क्या बात की। ठीक, now look at this. अच्छा, look at this please. हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास ना लेट्स से मैंने कहा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, सब सीक्वेंस। अभी हम सीक्वेंस निकाल रहे हैं या वैल्यू भी निकाल रहे हैं, हमें दोनों चीजें निकालनी है उसको। सीक्वेंस हमारे हम पहले हम सीक्वेंस की लेंथ निकालते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलो ऐसे जी, हमें बेटा करें भी ये, ठीक है, हमें करें भी ये। अच्छा, इसके इंडेक्सेस कहां से कहां तक करें, लेट्स से 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। कोई एतराज तो नहीं किसी को, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, और हम एक और बनाते हैं, एक मैक्सेस की एरे डालते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम लेंथ सीक्वेंस निकालनी है, तो हम मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। और ना मैं मान लो ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और इसको क्या वैल्यू इनिशियलाइज हुई होगी, हां 1 हो गया किसी को, ये वेक्टर है ना, इसमें क्या वैल्यू साइन होगी, इसमें हमारी जो वैल्यूज है वो होगी ये वाली यार, ये थोड़ा कर दो, ये इसमें क्या वैल्यूज आ रही होगी जो वैल्यू होगी यहां पर, ठीक है। और इसमें क्या पड़ा होगा, माइनस नहीं पड़ा होगा। अभी बताया क्या बात पड़ी बेटा, हर एक इंडिविजुअल एक लेंथ का सीक्वेंस है, तो एक्चुअली हर जगह पर 1 पड़ा। बाद में कितने नंबर पड़े होंगे इसमें, 0 से लेकर n-1 तक इंडेक्सेस है, और हर एक के ऊपर क्या सेव है 1, हर एक के ऊपर सेव है फिलहाल 1 का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इस लेंथ पर कंप्यूट करें तो 1 आता है। समझ आ गई बात, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ लुक एट दिस। अच्छा, ये जो m मैंने जो सवाल समझ लिया, m क्या है, m ये बताता है कि mi क्या बताता है। So look at this, what is mi? mi is एक वर्टेक्स पे कितना मतलब नहीं, कितना वेट, so what is the purpose Distance of जितना weight on it? हाँ What is the purpose of keeping weight on it? Weight can be 2 for वेट ये बताता है ना, यहाँ पर वेट बड़े स्पेसिफिक, यहाँ पर वेट बताता है, Sorry? हम सबके ऊपर 2 भी तो रख सकते हैं। What is the हम 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब ये एक एज लेते हैं, कंप्यूट कैसे कंप्यूटेशन में कैसे हम ब्लैंक लॉजिक पे C++ में कैसे मैं वही कर रहा हूँ, थोड़ा सबक कर रहा हूँ, ठीक है, सारे सवाल इकट्ठे होती हैं। मुझे सर समझ नहीं आ रहा कि क्या रीजन है। अभी रुक जाओ, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है, थोड़ा सबक तो कर लो जी। What is mi telling me? mi is telling me कि अगर मैं i की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है, तो मैं कह रहा हूं कि 10th इंडेक्स तक मैक्सिमम लेंथ की सीक्वेंस क्या आती है या कितनी आती है। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ 5 की बात करें तो इसका मतलब है क्या आंसर होगा इसका 1, इसमें कैसे होगा 1 नहीं होगा। इधर भी 1 इसमें
ओके, इसमें क्या सेव होगा आप बताएं। इसमें 2 सेव होगा, एक अपना और एक पीछे। एक अपना और एक पिछला। वो इधर से भी हो सकता है, वो इधर से भी हो सकता है। इसमें क्या सेव होगा आप बताएं। 3 3 नहीं, इसमें 2 सेव होगा। इसमें भी 2 सेव होगा, या 2 6 हो सकता है या 5 6। ओके, अगर हम 3 को लेके आएंगे तब भी 2 ही होगा। अगर हम 6 दोबारा लेके आएंगे तो फिर भी 2 ही होगा। जब 9 लेके आएंगे तब 3 होगा। ये समझ में आया बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और आखिर में जब हम यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ क्या होगा? सही हो जाएगा? So 3 के 3 तब भी 3 होगा। तब भी 3 होगा। 2 3 3 6 2 3 7 6 भी है ना? 9 2 4 3 6 7 या यू राइट 2 3 6 7 हाँ हो सकता है 4 है सर 9 पे 4 नहीं होगा। सॉरी 9 पे 4 नहीं आएगा। कैसे 2 3 6 बिल्कुल ठीक बात सुन 4 ऑलराइट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। चलिए जी हम कंप्यूट करते हैं। अच्छा एक बात सुन जी, शाबाश मैडम आप भी देख लें। हकीम तुम्हारा ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए हम ना सिर्फ ये कि ये वैल्यू निकालेंगे हर एक की, बल्कि साथ हम ये भी कंप्यूट करेंगे कि एवरेजिनल सॉल्यूशन क्या है। क्या मतलब वो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस है क्या, ठीक है? ये हमें क्यों चाहिए मतलब ताकि हमें लॉन्गेस्ट क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है क्या हम वो भी तो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो भी निकालेंगे, ठीक है? बस वेट करना है, ठीक है? शाबाश लुक एट दिस। अब हम ये करते हैं, इसके लिए रिटर्न टाइप फिलहाल क्या है, फिलहाल इसको इंट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि उसने एंड में लेंथ होता है, बाद में उसको इंट से हटाकर सीक्वेंस भी कर देते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है, ठीक है? नाउ लुक एट दिस प्लीज समी। ओके सो हियर इज हाउ आई विल गोइंग टू डू फॉर लूप। डू यू ऑल एग्री सब m's की वैल्यू कितनी है? हाँ सबकी वैल्यू शुरू में माने, ठीक है? Look at this solution. बिल्कुल मैं वो बस इसी से इंस्पायर है, ठीक है? So what I am going to do is for loop I is equal to 2 से मैं शुरू करूँगा, या मैं इसको 1 से शुरू करूँगा, ठीक है? सभी क्लास हो रही है। अच्छा 6 बजे जनाब। 6:15 बजे तब ये चुप हाँ बता देंगे प्लीज प्लीज ठीक है? अच्छा ओके सो हमने नेक्स्ट क्लास शुरू करनी है, 0 शुरू करनी है, तो हम यहाँ इसको 1 करेंगे, ठीक है? 1 से मैंने क्यों किया बेटा? क्योंकि 0 के ऊपर जो वैल्यू आएगी हमें पता है 1 ही आएगी, ठीक है? सो वी कैन सेफली अज्यूम कि बाकी सबके ऊपर हमने इनिशियलाइज किससे किया हुआ 1 1 1 से किया हुआ, ठीक है? So let me start the loop from 1. Okay, by the way, I am now computing bottom up. मैं शुरू ही bottom up से कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं top down वाली फर्स्ट वाली पढ़ूंगा। Do you all agree कि हमने top down करने की जरूरत नहीं है, हमें bottom up ही करते जाते हैं, ठीक है? क्योंकि हम पिछला आंसर कंप्यूट होता होगा और पिछले आंसर की बेस के ऊपर हम अगला कंप्यूट करते हो जाएंगे, ठीक है? So now look at this. So I is equal to 1. और I is less than n और यहाँ आएगा I plus plus, okay? Here is the idea, okay? The idea is what is I? I is telling me कि मैंने क्या करना, मैंने करना ये कि assume कि ith index जो है उसमें मुझे वैल्यू कंप्यूट करनी है, यानी कि ऐसी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस जो कहाँ एंड होती है, जो ith इंडेक्स पे आके खत्म होती है, ओके? फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 6 ना पड़ा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 पड़ा होता, इसका मतलब है यहाँ पर क्या वैल्यू पड़ी 1, क्योंकि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस जो है वो यहाँ से पीछे से इसमें ऐड नहीं हो सकता, ठीक है? तो यहाँ पर क्या वैल्यू पड़ेगी, यहाँ पर 0 वैल्यू या 1 वैल्यू पड़ेगी, ठीक है? तो नाउ लुक एट दिस। What is MI story? MI story कि अगर मैं longest sequence देखूं जो कहाँ end होती है, जो ith index पे जाकर end होती है, okay? ith index पे जाकर
एंड होती है, मैं वो कंप्यूट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये प्लीज देखना, ये वो ट्रिक है जो कि अगले प्रॉब्लम में भी है, ओके। तो बी वेरी वेरी अटेंटिव, ठीक है। सो व्हाट इज mi is telling me कि हमारे कहाँ पे रखे हुए हैं तो मैक्सिमम आयत इंडेक्स ऐड करके ith इंडेक्स ऐड करके मैक्सिमम लेंथ कितनी आती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं m2 की बात कर रहा हूं, तो मैं m2 की बात कर रहा हूं कि भाई ऐसी सीक्वेंस जो इस पे एंड होती है और वो मैक्सिमम कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये 2 ही होगी क्या। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 पे कौन सी सीक्वेंस सबसे लंबी है जो यहां पर एंड होती है, 5 और 8 हो सकती है, या 2 और 8 हो सकती है, जो मर्जी करें जी। 6 पे कौन सी हो सकती है, या तो वो 5 6 होगी या वो 2 6 होगी, 8 6 नहीं हो सकती जी। 3 की बात करें तो क्या होगा, 2 और 3 होगी। डू यू ऑल एग्री, और वो वैल्यू से बराबर आएगी, वो वैल्यू 2 के बराबर आएगी, ठीक है। नाउ हियर इज द आइडिया। सो व्हाट इज mi storing? mi storing that the ith index, assume that ith index is part of that sequence, और ऐसी सीक्वेंस जो है वो लॉन्गेस्ट कितनी आती है और वो उसके बराबर आएगी वो जो भी वैल्यू होगी हमने यहां स्टोर किया, ठीक है। बाय द वे, when the loop will start, which is I is equal to 1, जब I is equal to 1 की बात करें तो क्या I is equal to 0 कंप्यूट होगा? Yes. Yes. क्यों? क्योंकि m0 जो है वो है ही 1, ओके। डू यू ऑल एग्री? क्योंकि m0 हमारा है ही 1, वो तो हमें कंप्यूट करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल जैसे हमने बेस केस की बात की है। अब माइंड, सो मैं mi कंप्यूट करने जा रहा हूं, ये बात याद रखें। क्या कंप्यूट करने जा रहा हूं? mi, ठीक है। और मैं कंप्यूट ऐसे करता हूं। सो लेट मी स्टार्ट a loop, another loop which will be j is equal to, कहां से शुरू करते हैं, j is equal to 0 से शुरू करते हैं और कहां तक जाते हैं, j is less than I, excellent, और यहां करते हैं j plus plus। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं किसी भी एक इंडेक्स पर हूं तो एरो यहां से भी आ सकता है, एरो यहां से भी आ सकता है, एरो, मुझे सारे एरोस चेक करने हैं, ओके। अब फिजिकली यहां पर मैंने तो यहां पर एरो लगा दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन मैंने भी एरो ग्राफ बनाया इसके बैकग्राउंड में नहीं बताया, हमने तो ग्राफ बनाया ही नहीं। हम एक्चुअली इसको अरे की तरह ही ट्रीट करेंगे और हम इमेजिन करेंगे कि भाई एज आनी है या नहीं आनी, और वो मैं ऐसे करूंगा, कैसे। सो आई विल गोइंग टू चेक if a of शाबाश, if a of I शाबाश is greater than a of j, इसका मतलब भाई ये तो इस सीक्वेंस से बना रहा है, ये तो इसका सीक्वेंस बना रहा है। सो हम ये करेंगे क्या, नहीं, mi शाबाश is equal to max of क्या, जो पुरानी mi की वैल्यूज पे पड़ी हुई है, उसमें प्लस कर देंगे, नहीं प्लस नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट नहीं होगा, एक मिनट, या तो जो उसमें पहले वैल्यू पड़ी हुई है वही, या जो जिससे उसने कंपेयर किया है उस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसमें एक ऐड करके, नहीं और हो सकता है ना बेटा, आप वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से 4 लाइन की बन रही थी और जब मैं अगले j i की वैल्यू आती है उससे वो डिस्टेंस वो 3 लाइन की बन जाए, तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। जो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल हम 2 से 6 पे गए, हाँ, तो वो 2 हो गया, हाँ, फिर उसके बाद हम 6 से मेरी बात, मेरे पास लेट्स से पीछे बहुत बड़ा ग्राफ था, ठीक है, मैं इस जगह कंप्यूट कर, ठीक है जी। आप क्या कह रही है, आप ये कह रही है जो पीछे अगर कोई भी मेरा यहाँ पर इंडेक्स आता है ना, हाँ जी, उससे मैं अगर आगे मेरी मूव कर रही है ना तो मैं इसको चूज कर लूँ, मैं कह रहा हूँ हम चूज नहीं कर सकते, हमें कंपेयर करना पड़ेगा। हो सकता है इधर से एक सीक्वेंस थी जिसने एक लेंथ बनाई लेट्स से 10, और अगर हम इसको चूज करें तो इससे लेंथ ही एक बार मिले तो वो चूज नहीं कर तो वो तो चूज नहीं कर सकते, समझ नहीं पाते ये। इमेजिन करें बेटा ये वैल्यू है 10 फॉर एग्जांपल 100 है ना, ये बहुत सारी वैल्यूज थी जो कि फॉर एग्जांपल जी 99 तक आई और उससे ये बन गया है ना, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू पड़ी थी 0, अब 0 से मैं इधर जा सकता हूँ, लेकिन 0 से यहाँ पर आएंगे तो मेरी सिर्फ एक लाइन की सीक्वेंस बनेगी और मुझे चूज करनी चाहिए थी कौन सी वाली, ये वाली, मुझे 0 से 99 तक आई और फिर मुझे जाऊंगा, समझ रहे हो। तो आई हैव टू कंपेयर कि मैं क्या
करूंगा, मैं इनमें से मैक्स चुनूंगा कि पहले जो मैं MI में वैल्यू स्टोर हुई है उससे और क्या करेंगे, m of j प्लस 1, इनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम है वो मैक्सिमम वैल्यू में MI को सेट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, these two nested loops। और आप क्या करें, ये मेरी क्या क्या वैल्यूज कंप्यूट हो गई थी, ये बताएं। ये आपका वो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस बता दें। ये मैंने MIs कंप्यूट कर लिए, हर वैल्यू पे मैंने MIs कंप्यूट कर लिए। और वो MIs क्या बताते हैं कि मैं बताता हूँ मैक्सिमम जो कि यहाँ पर खत्म हो, वो सारा मैक्सिमम जो यहाँ खत्म हो, फिर यहाँ पे खत्म हो, फिर यहाँ खत्म हो, फिर यहाँ खत्म हो। अब हो सकता है कि बेटा जो आखिरी वैल्यू हो ना वो हो ही जीरो। अगर हाँ आखिरी वैल्यू जीरो हो तो मेरा तो किसी से भी कनेक्शन नहीं बनेगा। और यहाँ पर बेटा क्या वैल्यू है, यहाँ पर MI की वैल्यू क्या होगी, 1 हो। तो क्या मुझे ये आंसर देना चाहिए, नहीं, मुझे कौन सा आंसर देना चाहिए, जो इन सारे MIs मैंने कंप्यूट किए हैं उनमें से कौन सा MI मुझे रिटर्न करना चाहिए। ये जो लूप ये जो कह रहा है ना, एक्चुअली ये कह रहा है, ये कह रहा है मैं क्या करता हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ मैक्स। ठीक है, तो इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ना एक और नीचे लूप लगाऊंगा और मैं देखूँ किसकी मैक्स I की वैल्यू ज्यादा है, वो मैं वैल्यू निकाल के क्या करूँगा, रिटर्न। ठीक है, तो एक्चुअली वो एक सिंपल सा लूप होता है, वो कहते हैं जी मैक्स लिख देते हैं, मैक्स इज इक्वल टू, पहले मैं कह देता हूँ m0। ठीक है, फिर एक फॉर लूप लगाता हूँ, I इज इक्वल टू 1 से मैंने शुरू किया, I इज लेस देन क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर n आ जाएगा और यहाँ पे I प्लस प्लस आ जाएगा। और मैं यहाँ करूँगा if max is less than mi, तो क्या करता हूँ, मैक्स को अपडेट करता हूँ। ठीक है, यानी कि मैक्स इज इक्वल टू m। ठीक है, और आखिर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक, ठीक है, नगीन समझ में आया हैं, बाकी समझ में आ गया, इतनी सी बात है, तुमने परेशान हो गई। अब यकीन है कि चल रहा है, कोई ग्राफ हमने नहीं बनाया। देखो भाई बात सुनो, जो असल बात है ना वो ये है, कंसेप्चुअली अगर तुम ये देखो तो अगर मैं ये ग्राफ ना बनाता तो एक्चुअली आई एम कंप्यूटिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, but how I am computing it, it is actually exactly inspired from what I did in the underlying DAG. ठीक है, but the beautiful thing about this problem is I don't need to make graph। ठीक है, वो innate है उसके अंदर topological order। और दूसरी बात है कि मैं पिछली एजेस मैंने देखनी हो तो all एजेस में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, all I have to do is this check। जिसमें हम लोगों को ना जो है ना क्या मजा है, ग्राफ्स और एजेस की जरूरत पड़ा हम करते हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपकी जो डायनामिक प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट है उसमें एग्जैक्टली ऐसे होगा कि आपको जो प्रॉब्लम मिलेगी वो प्रॉब्लम के अंदर एक्चुअली आपको कहीं भी ग्राफ के बारे में नाम भी नहीं होगा और ना ही बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट कमिंग अप विद दिस will require I mean अंडरस्टैंडिंग कि वो कैसे डैग में ट्रांसलेट होता है, लेकिन उसको हम बनाएंगे नहीं डैग, लेकिन कैसे उसको अरे बेस में लिखेंगे। ठीक है, समझ आएगा बात। ठीक है सर, अब आगे सीक्वेंस कराना क्या, शाबाश, थैंक यू, पर मैं बता दिया। अच्छा, अब बेटा मैंने क्या सेव करना है, प्लीज बात सुन ले। ठीक, ये मैं कह रहा हूँ एजेस मरियम, एक बात है, मैंने बेटा एक काम और करना है, वो ये कि जहाँ मैं ये MI सेव कर रहा हूँ वहाँ मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये भी सेव करूँ। क्या सर, अगर हम ये MI ना लेते हैं और हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसकी वो एक उसके अंदर एट्रीब्यूट बना लेते हैं, उसका डिस्टेंस का, ये वेट का, उसके साथ ही हम उसका वो एक और सीक्वेंस टाइप भी बना लेते हैं, उससे भी तो आप कह रहे हैं हर एक के पास सीक्वेंस सेव करें तो बहुत जरूर नहीं, so you are on the right track, but what we're going to do is we're not going to save the whole path. What we're going to remember is the parent attribute। तो वही है, वही बात, you're right, बस I will only remember the parent attribute। याद है हमने जब longest path निकाल रहे थे तो हम parent सेट करते थे, exactly इसे कहते हैं बुक कीपिंग आइडिया।
बुक कीपिंग आइडिया हम एग्जैक्टली यहाँ फॉलो करेंगे, और वो कैसे फॉलो करेंगे वो मैं फॉलो करेंगे। यहाँ पे जी एक बुक बना दी, लेट मी कॉल दिस बुक, इट्स एक्चुअली कॉल्ड बुक कीपिंग, लेट मी मेक इट बुक, ठीक है। और बुक क्या, बुक रिमेंबर्स व्हाट, The parent. द पेरेंट्स, बुक ओनली रिमेंबर्स द पेरेंट। सो बुक का कितना साइज होना चाहिए, उसका भी n होगा। उसका भी n होगा, 1 0 से लेकर n तक। N उसकी minus इनिशियल वैल्यू क्या होगा, n माइनस 1, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इनिशियल वैल्यू उसकी क्या से है, नेल, क्योंकि किसी का भी पेरेंट नहीं है, सारे एक लेंथ के हैं, तो सारे के सारे क्या हैं, नेल, ठीक है। और अब हम एक और काम करते हैं, जब मैं यहाँ मैक्स अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक इफ लगा देता हूँ कि इफ मैक्स इज अपडेटेड, इफ मैक्स इज अपडेटेड, इसका मतलब मैं किससे अपडेट होता हूँ, MJ से, एक्सेलेंट, जबरदस्त बात। सो एक्चुअली मैं किससे अपडेट हूँ, मैं J से अपडेट हूँ। सो बुक कीपिंग में मैं ith इंडेक्स पे क्या सेव करूँगा, हाँ M, मैं बुक I के ऊपर क्या इंडेक्स सेव करूँ, ये एक सवाल है। हाँ, एक J नहीं, M of J. J is हाँ, a- जो जवाब J, सही कह रहे हैं क्या, only J। आज मुझे सिर्फ इंडेक्स सेव करना है कि मेरा पेरेंट है कौन, मेरा पेरेंट है कौन, समझे ना। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, लुक एट दिस, मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा ये 7 है ना, 7 सेव करेगा कि मेरा जो 7 में बेटा क्या वैल्यू बनी थी, याद है आपको, 4 वैल्यू बनी थी, तो 4 किसके थ्रू बनी थी, 6 के थ्रू बनी, राइट। तो इट विल ओनली, सो 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ये सेव करेगा बुक के इस इंडेक्स पे, सो एक्चुअली 0 1 2 3 4 5 6 7, सो B7 पे पड़ा होगा क्या, J 5. ये इंडेक्स, ठीक है। सो एक्चुअली ऑल आई हैव टू डू इज कि मैं क्या करूं, मैं ये इंडेक्सेस सेव करवा लेता हूँ, और जब मैंने आप पूरी सीक्वेंस प्रिंट करवाने के लिए मैं कैसे प्रिंट करूँगा, तो parent हो गया। हमने 5 से सेव करा है, 9 से तो 7 पे ऐसे नहीं है ना। 5. बेटा ये देखो इंडेक्सेस क्या है, मैं इंडेक्सेस सेव करवा रहा हूँ, दिस इज 1, सो 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 6 से तो आप मुझे बताओ 7 किससे, 7 पे वैल्यू आई थी आखिर में 4 है ना, वो जो m-4 वैल्यू आई थी, किसकी वजह से आई थी, 6 की वजह से। 6। तो ये अपना 5th इंडेक्स यहाँ पे सेव करते हैं, इसे कहते हैं बुक कीपिंग आइडिया, ठीक है। और बुक कीपिंग बस एक लाइन होती है जो ये बताती है कि मैंने ये आंसर यहाँ पे सेव किया था, सही। और ये मैं आपको बता रहा हूँ बाकी तकरीबन जितने भी प्रॉब्लम आगे आ रहे हैं ना, सब के सब में बुक कीपिंग चलती है। तो जैसे ही हम मैक्स कंप्यूट करते हैं ना, साथ जिस इंडेक्स की वजह से कंप्यूट होती वो इंडेक्स हम सेव करते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं जिसमें चाहे आपके पास चाहे आप रॉड कटिंग प्रॉब्लम कर रहे हो, चाहे आप नैपसैक प्रॉब्लम कर रहे हो, चाहे आप एडिट डिस्टेंस कर रहे हो, कॉमन सब्सिक्वेंस कर रहे हो, सब के सब में आइडिया एग्जैक्टली इससे इंस्पायर बुक कीपिंग का, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात सुनें, अब मैं आपको पहले एक सवाल करता हूँ कि हमने जी बताइए सर आपने कहा ये if इसके बाद लगेगा, एक और if आएगा। एकदम, हाँ कब है सर आपने बोला कि जब ये हम जब ये यहाँ पर ना हम क्या, मैं आपने कहा if हम करेंगे कि अपडेट हुआ है तो मैं ना इसको दोबारा लिखूंगा, ठीक है। ये लाइन ऐसे है, आई डोंट नो आप लोग शायद परेशान हो गए इसको देख के, नहीं मैं एक मिनट, मतलब ये देखिए कैसे कि वो अपडेट हुई है वैल्यू। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, मैं लिखूं if फिर ऊपर आएगा, मैं ये कह मैं रही हूँ नीचे तो ये मैंने ये फाइल है, ये मैंने इफ यहाँ लगाया जी। और यहाँ मैं इफ कहता हूँ, सो इफ तो वही नंबर आएगा। mi is less than क्या, आपको जी m क्या, mj, ओके, ये वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन यस, तो मैं ये j मेरा पिछला इंडेक्स है, तो मैं कहता हूँ mj पे जो वैल्यू पड़ी है उसमें +1 करें तो क्या ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली बड़ी है तो इसका मतलब मुझे मैक्स को अपडेट करने की जरूरत है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल नॉट ओनली सेव mi is equal to क्या, mj +1, but also I will remember this j, which means book की ith इंडेक्स पे let's say कर दूंगा j, ठीक हो गया। तो लेकिन अगर
तो इधर I और जो J है हाँ। इंडेक्स सेम तो नहीं है। I और J इंडेक्स सेम नहीं होने चाहिए, तो कंफ्यूजन क्या है, मुझे समझ नहीं आता होता। नहीं कंफ्यूजन क्या है बताएं, ये बड़ी जरूरी बात है। सर जो पहले आपने मैक्स का फंक्शन इधर लिखा हुआ हाँ। है उसको आपने इफ की कंडीशन में उसको मैंने फिर लगा दी कि अगर मैक्स अपडेट होना है तो फिर तो मैक्स अपडेट हो, और साथ ही जो jth इंडेक्स है वो भी सेम। जिसने एक्चुअली इसको चेंज किया वो मैं यहाँ पर सेव करूँ। ये बात समझा? ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? लेट मी बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। मैंने कभी भी कोड नहीं किया, आई होप आई विल बी एबल टू कोड। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, कर देते हैं जी, और हम करें प्लीज। एंड दो भैया, डुप्लीकेट नहीं करना, मैंने कहा डुप्लीकेट है। अरे ये देखो तो क्या करना, स्क्रीन नीचे आ गई तो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, एंड क्या था, एंड वीज, ठीक है जी। वेक्टर को डायरेक्टली निकाल कर सकते हैं Yes sir। ऐसे करके। क्या क्या वैल्यू थी, वैल्यू था 5 to 8, सर पहले उसका वो 5 to 8, 6 3 6 9 7, ठीक है। आई होप ये सही चलेगा सर M भी तो देनी होगी। जी M जी। वेक्टर एंड प्लीज 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 मोबाइल रख दें और रख दें, सारे रखें एम्स, और यहाँ पे हम मिलते हैं वीज डॉट साइज, कॉमा 1 ओके काम करें उसके बराबर ना कर दें, मतलब यहाँ पे ना बराबर करते हैं जी 1 नहीं सर ऐसे नहीं 1 सर डायरेक्टली भी हो सकता है, आप नहीं, ये नहीं। बांध दे दें Equal ये to होता है करके। सर, मैंने किया था। नहीं होता, मैं समझा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 एक काम, सर इसीलिए वो ठीक है क्या, हाँ बुक कीपिंग का वेक्टर जी एंड एम्स बी सॉरी बीस बुक, ठीक है। अब हम रखते हैं -1, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स रखते हैं ना, इंटीजर्स रखते हैं तो नल तो रख नहीं सकते, तो हम -1 -1 -1 -1 एक और तरीका होता है, आप सिर्फ साइज बताएं और आगे वो कॉमा डाल के वो बताएं तो वो सारी सही मैं है। क्यों नहीं तुम बता रही, एक मैं और क्यों करूँ कि तुम बता रही, एक और आएगा सर ये अच्छा। फिर आप सर एक काम है। ओके आप सही है, ठीक है फिट हो गए। अब हम एक काम करते हैं जी, ये हमने वैल्यूज उठा ली, और अब हम एक काम करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, हाँ लॉन्गेस्ट वॉइड जी बताएं, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस फाइंडर, ठीक है जी। और इसमें हम पास करते हैं जी वीज which is vector of and these, हाँ जी ये याद है मैडम को, सर ये कॉपी हो सर ये करना है हमेशा भूल जाता है। सब कुछ याद मैं भूलता हूँ हमेशा ही जानबूझ के। भूलता है। नहीं मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमेशा भूल जाता है। याद रहता है। एम्स वो यहाँ जहाँ याद रहता है वहाँ याद रहता खुद करते हुए भूल जाता है। अभी समझ में आ रही थी कि क्यों नहीं हो है। अच्छा भाई चलो भाई ये देखो ये देखो अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर इंटीजर I is equal to 2 से शुरू किया, 1 से, हाँ, 1 से I
is less than v's dot size I plus plus. ठीक हो गया? सभी फोकस करो जी। आप क्या करें? For integer j is equal to 0, j is less than I, j plus plus, और क्या करना है? If हाँ जी बताएं। मैक्सिमम से करना। हाँ जी। पहले वैल्यू चेक करनी है। V's I is greater than V's of j। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई ये एक इंक्रीमेंट बना सकता है। अब मुझे साथ चेक करना है if g m of I is less than क्या m of j plus 1। ठीक है, तो क्या कर दे? m से यहाँ पे जी m है और यहाँ पर भी जी m है। m's of I is equal to m's of j plus 1. Not only this, but also we have to say ds of I is equal to j. ठीक हो गई? सही है? All right. Now here is the thing. इससे रिटर्न करवा दें longest length, है ना? So 8 रिटर्न करवा देते हैं और रिटर्न करवाते हैं आखिर में for loop। मैं I hate फंक्शन जो कितने बड़े होते हैं। So इंटीजर रिटर्न करवा देते हैं, इसका नाम रख देते हैं max और यहाँ रखते हैं जी वेक्टर ऑफ जी बताएं जी int ampersand v's जी integer max is equal to v's 0 for integer I is equal to 1, I is less than v's dot size I plus plus। ठीक है जी। if max is less than v's I क्या करते हैं? ठीक है जी, max is equal to vs of I। ठीक है, चाहे एक काम और करते हैं, एक काम और। यहाँ पे ना मैं इंटीजर ले लेता हूँ max index। ये मैं क्यों ले रहा हूँ? कि वो पेरेंट बताएगा। हाँ, ये बताएगा कि भाई मैक्स कौन सा आया था और मैक्स किस यानी मैक्सिमम सीक्वेंस जो है वो कहाँ एंड हो रहा है, और वहां से पैरेंट करते करते हम -1 पे आएंगे और हम स्टैक में स्टोर करेंगे और स्टैक से हम उल्टा प्रिंट कर देंगे और हमारे पास सीक्वेंस प्रिंट हो जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है समी, तुम्हारी फैंटी लगेगी और एग्जाम में ना ब्लॉक। अच्छा, और ये रिकॉर्ड हो गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम साथ एक और काम करते हैं कि जो मैक्स है उसके साथ ही मैक्स इंडेक्स भी सेव कर देते हैं। सो मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, ताकि हमें ये भी साफ याद सेव हो जाए कि किस मैक्सिमम किस इंडेक्स पे पड़ा है। ठीक है। अच्छा, साथ ये कि जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस फाइंडर है ना, हम इससे ना दो चीजें रिटर्न करवाते हैं। एक तो हम उससे मैक्स वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, वो हम इससे रिटर्न करवा देंगे। साथ हम एक और काम करते हैं, इंटीजर m% एक मैक्स इंडेक्स ले लेते हैं। ये हम भला कहां सेट करेंगे? इसमें, इस फंक्शन। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं रिटर्न करता हूं। भला क्या रिटर्न करता हूं? मैक्स ऑफ जी बताएं, इसमें मैं करता हूं v's जी बताएं मैक्स इंडेक्स, इसको एज इट इज पास कर देते हैं। अब क्योंकि ये बार रेफरेंस नहीं लिया हुआ तो मैक्स इंडेक्स में वो इंडेक्स भी सेव हो जाएगा कि कौन सी वाली मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो रिटर्न करेगा वो मैक्स वैल्यू होगी। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वो ये से mi को ट्रेस करेंगे तो हमें पेरेंट दिखा, शाबाश, वो हमें पहले वाले का पेरेंट दिखा देगा। ठीक है, ये एक्चुअली लिस्ट एंड कहाँ हो रही है। ठीक है, चलो जी आ जाओ। यहाँ में हम जी ये फंक्शन पास करते हैं, इसमें जी हम v's पास करते हैं, इसमें जी हम m's पास करते हैं, v's पास करते हैं। एक चीज हमें और चाहिए, वो है mi। तो हम mi यहाँ लिख देते हैं और int mi हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, और उसको इनिशियलाइज कराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पहले तो null होगा। शाबाश। ठीक है, तो हम और ये रिटर्न करवाएगा मैक्स, यानी मैक्स सीक्वेंस
साइज, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये हमें इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। एवरीबॉडी एग्री? ये वैल्यू जो भी आएगी वो हम इसमें सेव कर लेंगे, मैक्स सीक्वेंस टाइम में प्रिंट कर लेंगे और हम उससे पहले सी आउट लिखेंगे क्या, यानी कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस साइज इज, ठीक है। क्या कर देंगे जी, मैक्स सीक्वेंस साइज एंड एल, और यहां करते हैं सी आउट जी द सीक्वेंस इज एक्चुअल, ठीक है जी। वो हम प्रिंट अभी करते हैं थोड़ी देर में, तो कुछ फॉर से ही होगा, लूप से ही होगा। अभी लूप करेंगे, लूप करेंगे, ठीक है। और वो हम ऐसे सेट करते हैं, वो ये कि हम यहाँ बनाते हैं एक अंकल स्टैक, ठीक है। एंड क्योंकि हमने जो बुक कीपिंग है वो उल्टी पड़ी हुई है, हेडर डाल दें। तो हम उसमें हेडर रखेंगे और फिर पैरेंट 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 पे आते जाएंगे, और वो पैरेंट हमें कौन देगा, हमें वो बुक देगी, ठीक है। और वो तब तक ऊपर आते जाएंगे जब तक कि हमें कौन सा नहीं मिलता, माइनस, ठीक है। सो स्टैक एंड बनाते हैं, स्टैक पे एरर दे रहा है इसलिए कि हमने स्टैक इंक्लूड नहीं किया। स्टैक बाद में वेक्टर से भी काम चल जाएगा, है ना, बट नहीं हम यहाँ पे स्टैक बना रहे हैं, ठीक है। स्टैक क्यों की गई बेटा, मुझे सीक्वेंस रिवर्स ऑर्डर में नहीं चाहिए जी। आप देखेंगे हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, यहाँ पर आते हैं वेक्टर, वेक्टर है क्या होना चाहिए बताएं मुझे, हमें सीक्वेंस चाहिए, राइट, ठीक है। और सीक्वेंस हमें उल्टा ऑर्डर मिलेगी और फिर उसको पुश करते जाएंगे, जब ड्रॉप करेंगे तो सीधी ऑर्डर मिलेगी, ठीक है। से ये देखिए हमें ये मैक्स सीक्वेंस मिली mi पे, सो while जी टाइम bs mi, look at this, और not equal to -1,